प्रार्थना बोलेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। All right, we are going to continue today from where we left off. Seema, I'm going to meet you. All right. Okay, so we are on page number 5. Hmm? So in our last class, I'm going to mute everybody, and if you need to, you just unmute yourself. Okay. All right. So in our last class, we understood a few things like what is yoga. We understood the meaning of the word Arjuna, the meaning of what is listening, the meaning of the word Gita, and what it is, what is Kshetra, and what is Kuru, and what is Dharma, all of that. And we had come up to the word yoga. In yoga, we understood that when separation ends and reunion takes place, that is the real meaning of the word yoga. The outer parts and the outer systems, by their very nature, are bound to be limited. The inner is the undivided whole. तो योग जो है ना, ये बाहर के हम कितने भी मार्ग, कोई भी मार्ग लगे, आप कोई भी मार्ग ले लो, योग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, मंत्र मार्ग, जो भी अलग अलग मार्ग उठा लो आप, लेकिन वो जो पूर्णत्व है वो तो अंदर से ही होने वाला है। योग जो है ये अंदर से ही होगा। क्योंकि बाहर वाली कोई भी चीज अपने स्वभाव से सीमित है। इट इज लिमिटेड बाय इट्स वेरी नेचर, ऑलराइट, एंड इट्स ओनली द इनसाइड, ओनली विदिन इज द अनलिमिटेड कंप्लीट होल. And then the last sentence that we read was, so whether it is Sankhya Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, all those paths are meant to enable a person to arrive at the inner essence of yoga, reunion with reality, with the absolute truth. तो वो परम सत्य के साथ जुड़ने में ये मार्ग हमें मदद करते हैं. The purpose of Gita, the epitome of Vedic philosophy, is to enable a person to get acquainted with the outer and appreciate the inner, use the outer path and systems for the sake of the inner. Okay, तो भगवत गीता का जो जो वेद तत्व ज्ञान जो है, इसकी उच्च, सबसे उच्च शिक्षण है ये इसलिए है कि बाहर के मार्ग जो है ये हम देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, चलेंगे, लेकिन वो हमारे लिए साधन बनेंगे अंदर पहुंचने के लिए. Okay, all the outer paths that we do, everything that we'll do will help us go within. The purpose of the Gita is to create. क्यों ये बता रही है यहाँ पे, you know why she is saying this? क्योंकि मैंने भी ये देखा है, आपका भी अनुभव रहेगा कि कोई एक मार्ग फॉलो करने में वो मार्ग को इतना समर्पित हो जाते हैं कि अंदर के योग से बाहर का वो मार्ग जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है. You know that the path that you are following, you become a fanatic about the path. And like in one of the books, I think of Sadhguru's, we had read that three truths into well-being, right? We had read in that no one marga is ever going to help you reach within that higher consciousness or the Atma within. What is going to help us is a combination of all of it. अगर ज्ञान नहीं है और भक्ति है, अगर भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, भक्ति है, लेकिन कर्म नहीं है, कोई भी एक चीज अगर नहीं होती तो अध्यात्म नहीं होगा, हम आत्मा के साथ एक रूप नहीं हो पाएंगे. या यू नीड ऑल ऑफ देम to finally reach insight. So your bhakti has to come from knowledge, your belief in whichever system that you're following. It has to be an educated choice.
It has to come from knowledge. And your actions have to match your belief system. We believe in one thing, we act something else. तो ये जो है ये नहीं होना है. So that is why she is pointing out again and again. The path is a tool. कोई भी साधन है ना, उसका काम हो जाने के बाद हम बाजू में रख देते हैं. साधन लेके हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे. Right? So the purpose of the Gita is to create the awareness of the necessity of growing into the state of yoga, the state of consciousness of yoga. तो वो जो अंदर की एकता है, वो अंदर का जो योग होना है, समाधि की जो हमारी चित्त, what are we? Now we all know, by now we have read it enough times, that we are conscious beings, right? We are Satchit Ananda Avastha, right? Satchit, we are the conscious true beings. And to reach that consciousness which is now divided, it has to become one. एकाग्र चित्त जिसको हम कहेंगे, हमारी चित्त भूमि जो है ये एकाग्र होनी जरूरी है. तो उससे तब जाके हम योग की अवस्था या समाधि की अवस्था में जा पाएंगे. और भगवत गीता का वही ध्येय है कि हमें योग तक पहुंचाए. द भगवत गीता हैज 18 chapters. In this structure, the first chapter gives us the background, the situation that created dejection and frustration in the mind of Arjuna. भगवत गीता के 18 अध्याय है और पहला अध्याय जो है, इसी में ये जो अर्जुन है ये बिल्कुल नकारात्मक हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उनका मन बिल्कुल विचलित हो गया है. So from the universal message we come now to the framework in which this message has been incorporated as it were. तो अर्जुन जो बिखर गए हैं, जो योग में नहीं है, एकाग्र चित्त नहीं है, समाधि की अवस्था उनकी नहीं है, और हमारा ध्येय है समाधि की अवस्था, योग की अवस्था. वहां पे जो बिखरे हुए अर्जुन है, तो वहां से हम जो शुरुआत होती है भगवत गीता की, यहाँ पे जो बिखरा पड़ा है, इस सब को एकजुट बनाने की, इस सब को एकत्रित लाने के लिए पहला चैप्टर जो है ये बिल्कुल वो जो बिखरा हुआ है अर्जुन, इससे शुरुआत होती है. As the history goes, थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं. As the history goes, there was a king called Dhritarashtra who had a brother called Pandu. Dhritarashtra had many sons called the Kauravas and Pandu's sons were called the Pandavas. हम सब जानते हैं, right? कि धृतराष्ट्र थे, उनके 2 बेटे थे. नहीं, उनका भाई जो था पांडु था, पांडु के पुत्र थे पांडवा और धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौरवा. Pandu died and the throne went to his brother Dhritarashtra who was blind. और पांडु का देहांत हो जाता है और गद्दी पे कौन बैठ जाता है? धृतराष्ट्र बैठ जाते हैं, लेकिन वो आंखों से अंधे थे. And then there was a quarrel, और फिर झगड़ा शुरू हो गया. The sons of King Dhritarashtra did not allow their cousins the Pandavas to have their share of the kingdom. पांडव पुत्र जब आए वहां पे बोले कि भाई हमें हमारा हिस्सा दे दो. तो धृतराष्ट्र के पुत्रों ने यानी कौरवों ने कहा, भाइयों ने कहा, वो जो 100 थे 101 थे कोई कहता है, तो उन्होंने कहा हम बिल्कुल नहीं देंगे. मच वॉज डन, मेनी वेज वर एक्सपेरिमेंटेड. और उसके बाद बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ प्रयत्न किए गए टू एक्सप्लेन टू द किंग दैट द किंगडम बिलोंग्ड 50-50 टू द पांडवास एंड द कौरवास. और धृतराष्ट्र को बहुत समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो तो राजा थे, उनके बेटे या उनकी प्रजा या उनकी बीवी या उनका परिवार कुछ भी बोले, राजा का काम होता है न्याय देना, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया. बहुत तरह से उन्हें समझाया गया कि आधा हिस्सा पांडवों को जाना चाहिए, पर उन्होंने सुना नहीं. But Dhritarashtra's eldest son, who was very obstinate, very ambitious, very jealous, would not part with the land. लेकिन उनके सबसे बड़े पुत्र थे, हम सब जानते हैं, दुर्योधन, जो बहुत एम्बिशियस थे और बहुत जलस वृत्ति के थे, ईर्ष्यालु जो बहुत थे, वो बिल्कुल अपनी हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं थे.
At the end, आखिर में, after 14 years of different efforts having been made, 14 साल तक अलग अलग प्रयत्न पांडु करते रहे कि हमें हमारा हिस्सा दे दो। एंड बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ ऑल दोज एफर्ट्स, और वो सारे प्रयत्न जो थे ये उनके फेल होने के बाद, कृष्णा वेंट टू नेगोशिएट। आखिर में कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, डोंट गिव हाफ द पोर्शन। अच्छा चलो ठीक है, आधा आप नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। गिव 5 विलेजेस टू द 5 ब्रदर्स। ये पांडव 5 है, 5 जन को 5 गांव दे दो आप, ताकि कहीं तो भी वो इस क्षेत्र में रह सके। नो, अच्छा नहीं देना चाहते, 5 गांव भी नहीं देना चाहते, एक गांव दे दो। नो, एक गांव भी नहीं देना चाहते। नो, नॉट इवन एन इंच ऑफ लैंड, 1 इंच भी जगह आपको नहीं दी जाएगी। एंड सो इट वॉज अर्जुना एज द लीडर ऑफ द पांडवस। सारे प्रयत्न किए, कम से कम डिमांड की, फिर भी जब सामने वाला सुन नहीं रहा, अर्जुना जो क्षत्रिय थे, अर्जुना जो पांडवों में धनुर्धारी जो थे, हु टुक द डिसीजन, उन्होंने निर्णय लिया दैट देयर वाज नथिंग एल्स लेफ्ट बट टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस। क्योंकि ये तो अन्याय है, और अन्याय के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय अर्जुन ने लिया। उन्होंने कहा, इट इज इनजस्टिस, ये तो अन्याय है। वी आर राइटफुली एंटाइटल्ड टू हैव हाफ द किंगडम। वी वर प्रिपेयर्ड फॉर 5 विलेजेस, 1 विलेज, बट नो, सो लेट अस फाइट। हम तो 5 गांव के लिए भी तैयार हो गए, हक से हमारा तो आधा राज्य हमारा बनता है, लेकिन हम 5 गांव पे सेटल होने को तैयार है। वो नहीं, एक गांव भी नहीं, कुछ भी नहीं हमें दोगे तो अब तो हमें युद्ध करना होगा। अर्जुना गोज टू कृष्णा आस्किंग, विल यू प्लीज हेल्प मी। और युद्ध करने का निर्णय लेकर अर्जुन कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या आप हमारी मदद करोगे। एंड कृष्ण ऑफर्स हिमसेल्फ टू स्टैंड बाय अर्जुना। और कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। The son of Dhritarashtra also goes to Krishna for help, and to him he says, I can give you my army. और दुर्योधन भी जाते हैं कृष्ण के पास और कहते हैं कि आप मुझे भी आपका हेल्प चाहिए, आप भी मुझे मेरी सहाय करो। तो वो कहते हैं, ठीक है, तुम्हें मैं मेरी पूरी सेना देता हूँ, मेरा सारा सैन्य तुम्हारा, और मैं अकेला अर्जुन के साथ। हम महाभारत ये सब जानते हैं। सो शॉर्ट में यहाँ पे उन्होंने ये बैकग्राउंड दिया कि धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, और बस अब युद्ध होने ही वाला है, और तब जाके अर्जुन बिखर गए हैं। और क्या हुआ था बैकग्राउंड में स्टोरी, वो भी उन्होंने बताई। सो अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 की, पहला अध्याय, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, द डेस्पोंडेंसी ऑफ अर्जुना। तो ये अर्जुन विषाद योग, जहाँ पे अर्जुन बिल्कुल निराश हो गए हैं, बिल्कुल अपने हथियार छोड़ दिए हैं। तो ये पहला अध्याय। एंड सो दे फाइंड देमसेल्व्स ऑन द बैटल ग्राउंड। और ये युद्ध, इस अन्याय के खिलाफ जो युद्ध करने का निर्णय हुआ, इसके वजह से सब लोग कुरुक्षेत्र में अब खड़े हैं। द आर्मीज आर फेसिंग वन अनदर। दोनों सेना एक दूसरे को देखते हुए आमने सामने बिल्कुल आकर खड़ी है। एंड सडनली अर्जुना रियलाइजेस दैट दोज विथ whom he is going to fight are his relations, his uncles, nephews, teachers who had taught him archery, the sciences and arts of war, who had taught him the Vedas, the Upanishads. बिल्कुल सेना सामने सामने खड़ी है, युद्ध पुकारा गया है, सारी तैयारी हो गई। और अर्जुन जब जाते हैं वहां पे, और जब सामने देखते हैं कौन है दुश्मन, सामने दुश्मन की सेना को देखते हैं, उन्हें ख्याल, उनको दिखता है कि ये तो सारे मेरे अपने हैं, ये मेरे चाचा मामा लोग हैं, ये मेरे अंकल्स है, ये मेरे भाई है, ये मेरे गुरु है, वही गुरु जिनसे मैंने विद्या सीखी है।
वो गुरु जिन्होंने मुझे युद्ध करना सिखाया है, और उनके सामने मैं युद्ध पुकारने जा रहा हूँ। यही गुरु है, यही लोग है, यही मेरे अपने हैं जिन्होंने मुझे वेद उपनिषद सिखाया है, और मैं उन पर वार करने जा रहा हूँ, युद्ध करने जा रहा हूँ। यहां तक आके रुके। अब देखो, ही हैड नोन ऑल दैट बिफोर। क्या अर्जुन को पहले से ये सब नहीं पता था? जब उन्होंने युद्ध का निर्णय लिया, क्या तभी उन्हें नहीं पता था? ये सब कुछ उन्हें पता था कि वो किन किन के साथ लड़ने जा रहे हैं। When he took the decision to fight, but knowledge is one thing, an encounter, physical, sensual encounter with the facts is quite another. ज्ञान हमारे पास बहुत कुछ होता है, ज्ञान में हम बहुत सुख में होते हैं, लेकिन उसी ज्ञान के साथ आमना सामना जब हो जाता है, या आई नो दैट आई एम गोइंग टू फाइट अगेंस्ट माय अंकल एंड माय ब्रदर्स एंड माय गुरु, बट जब वो सामने आता है, आते हैं सब लोग, तब ये सारा ज्ञान मेरा, मुझे कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, ये शारीरिक सामना, सेंशुअल का मतलब होता है आंखें के सामने, कानों से देख रहे हैं, आंखों के सामने देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ऑल द सेंसेस आर कनेक्टिंग टू द सो कॉल्ड एनिमी, तब जाके वो बात अलग बनती है। नॉलेज हैज एन एब्स्ट्रैक्शन अबाउट इट। देखो क्यों ऐसा होता है। हाँ, जब सत्य परिस्थिति सामने आती है, तब ये नॉलेज जो है ना, नॉलेज जब होता है तब हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वही जब सच्चाई में कन्वर्ट होता है, वही बिल्कुल जब सामने आता है, तभी क्यों हम अलग से महसूस करते हैं। वाई डू वी फील समथिंग डिफरेंट? इट्स नॉट द सेम एज नोइंग। वाई? बिकॉज नॉलेज इज एब्स्ट्रैक्ट। हाँ, अमूर्त, मैंने बोला ना, मूर्ति नहीं है, अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। और ज्ञान कितना भी पढ़ लो, आत्मा को जान लो, भले भले लोग जिन्होंने आत्मा को जाना है, उनके अनुभव वो बताते हैं कि जब आत्म साक्षात्कार का वक्त आता है, तब एक्चुअली डर भी जाते हैं, बिकॉज knowing is one thing, but actually facing it, actually experiencing it, it's quite a different thing. So yes, he had to fight against them, he had to fight the injustice, etc etc. युद्ध तो करना होगा, अन्याय तो हुआ है, but when he is standing there face to face, he got dejected. लेकिन जब बिल्कुल फेस टू फेस, आमने सामने उनके खड़े हो गए, तो हाथ पैर कांप गए। कहने लगे, देखो क्या बोल रहे हैं अर्जुन, व्हाट इज द यूज ऑफ फाइटिंग? ये लड़ने में, ये युद्ध करने में क्या मतलब है? दे विल गेट किल्ड, सारे मर जाएंगे। द आर्मी विल बी फाइटिंग फॉर अस, विच इज फाइटिंग फॉर अस विल बी किल्ड। ये सारी सेना जो मेरे साथ खड़ी है, ये सारे लोग मौत के घाट उतर जाएंगे। ये लड़ाई में क्या मतलब है? वॉट टू डू विद द ब्लड स्टेन्ड विक्ट्री? और ऐसे खून अपनों का ही, जहां पे खून बहा है, ऐसा ऐसा विजय प्राप्त करके क्या उपयोग है? हम कहते हैं ना, खून से रंगे हाथ, ये खून से रंगी तलवार, ये क्या मतलब है? इसको कोई इसमें मतलब नहीं है। प्लीज लेट मी नॉट फाइट। नहीं नहीं, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ओके, नाउ he had taken the decision to fight. He had brought his army there. Everything had been done. But suddenly he intellectualizes. उन्होंने सैन्य तैयार किया था, सैन्य को लेके आए थे, युद्ध का निर्णय, युद्ध की पुकार उन्होंने दी थी, और अचानक आध्यात्मिक बातें करने लगते हैं। आध्यात्मिक भी नहीं कह सकते, फिलॉसफी, इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी, कि नहीं, लोगों को मारने में क्या मतलब है, ये अपने ही लोग हैं, इतना खून बहेगा, और ये खून बहने के बाद हमें जो
वो तो पक्का है कि जीतेंगे तो हम ही। तो ऐसा विजय मिलने के बाद उस विजय को क्या मतलब रहेगा? हाँ, वो जय में क्या कौन सा आनंद रहेगा? वी ऑल नो द स्टोरी ऑफ किंग अशोका, राइट? हाँ, उनका जो उन्होंने युद्ध, उसके बाद में ही कंप्लीटली कन्वर्टेड टुवर्ड्स बुद्धिज्म, और उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया, राइट? सो जब उन्होंने देखा कि कितना खून खराबा हुआ, कितना खून बहा, कितने लोग मर गए कलिंगा के वॉर में, राइट? आफ्टर दैट ही गेव अप वॉर्स। सो यहाँ पे अर्जुन वो होने से पहले ही रुक गए हैं, और यहाँ पे वो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछने लगे हैं। He let me not fight. He had taken the decision to fight, brought his army there, everything had been done, but suddenly he intellectualizes and says, और कहने लगे, कृष्णा, I want fight, I can't fight, my body is trembling, my intellect does not work. नहीं नहीं कृष्णा, ये युद्ध में नहीं कर सकता, मैं शस्त्र नहीं उठा सकता, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मेरी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही, तो आई जस्ट कैन नॉट फाइट, ऐसा वो कृष्ण को कहते हैं। डजंट दिस हैपन टू अस? अब विमला जी हमें यही बात पूछती है, क्या हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता कि जब बिल्कुल वक्त आता है कुछ करने का, जो निर्णय हमने ही लिया था, और जब वो सिचुएशन सामने आती है तो हम कांप जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो हम नहीं कर पाएंगे। वी कहाँ पे देखो, उन्होंने यहाँ पे सी विथ विमला जी, शी इज गोइंग टू गिव अस, टेक अस टू द हाईएस्ट स्टेट ऑफ अवर कॉन्शियसनेस। तो विमला जी अगर कुछ बोल रही है ना, वो आत्मिक लेवल पे बात करेगी, ऑलराइट? सो देखो अब उदाहरण कैसा दे रही है वो, डजंट दिस हैपन टू अस? क्या ये अपने साथ नहीं होता? वी इंक्वायर व्हाट इज रियलिटी, हम क्या पूछते हैं, ये सत्य क्या है, या आत्मा क्या है, ये सच्चित क्या है, ये सवाल हम पूछते हैं। व्हाट इज मेडिटेशन, ये ध्यान क्या होता है, ये समाधि की अवस्था क्या होती है? व्हाट इज द नोन, द अननोन, ये ज्ञात क्या है, अज्ञात क्या है, ये हम सवाल पूछते हैं। एंड देयर इज एन अर्ज टू ट्रांसेंड द नोन। और जो दिखता सुनाई देता है, दिखाई देता है, महसूस होता है, ये तो दुनिया में जानती हूँ, लेकिन जो मैं जानती हूँ उसके परा क्या है, व्हाट इज बियॉन्ड द नोन, वी आस्क दैट। और हमारी इच्छा होती है कि हम परा जाए, टू बी विद द अननोन। वो जो ज्ञात तो मुझे पता है, लेकिन अज्ञात को जानने की चाह मन में हमारे उभरती है, और हम अज्ञात में जाना चाहते हैं, जो हम नहीं, जो ज्ञात हमें नहीं है उसमें हम जाना चाहते हैं। एंड देन यू कम टू द फ्रंटियर्स ऑफ द नोन, और फिर हम साधना करते हैं, अलग अलग मार्ग पे चलते हैं, और ये जो सीमाएं हैं, देखो वॉट एवर इज नोन, जो हमें ज्ञात है, वो लिमिटेड है, वो सीमित है, बराबर? तो उसकी एक सीमा होती है, उस सीमा तक सब कुछ नोन है, उस सीमा के उस पार सब कुछ अननोन है। आध्यात्मिक भाषा में जो नोन है इसको कहते हैं अपरा, और जो उस तरफ है उसको कहते हैं परा। तो अपरा की जो सीमा है, वो अपरा की सीमा तक हम पहुंच जाते हैं, एंड आर इन इंटीमेट कांटेक्ट विद द अननोन। और वो जो अज्ञात जो है, बस उसको छूने ही वाले हैं, देयर इज अ ट्रेमर, हम थर थर आ जाते हैं, बिकॉज वन डज नॉट नो what the contact with the unknown will do to one's being। लेकिन वो अज्ञात को छूते ही मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता, राइट? समाधि की अवस्था, ज्ञात पहुंच गए। सीमा शाह, you had sent this, shared Swami Sarvapriyananda's beautiful lecture on is consciousness Advaita, or is consciousness a part of Dvaita? Yeah. So yes, yeah. So that is what everything, we reach the frontiers of Dvaita,
and now we are going to enter into the Advaita. We come in touch with it and we get scared. और हम डर जाते हैं, हम थरथरा जाते हैं, बिकॉज हम नहीं जानते कि वो कांटेक्ट होने के बाद हमारा क्या होने वाला है. Okay, so what it will do to the way of living that one has been used to. आदत, जो हमें आदत से ये जीवन पता है, आदत से हम ये जिंदगी को, जिसको हम जानते हैं, यू नो, ये जो जानना है, इसका आगे क्या होगा. जिस तरह से आज तक हम जीते आए हैं, अब हम उस तरह से नहीं जी सकेंगे. फिर हमारा क्या होगा. या ऑल ऑफ यू आर वन वे और द अदर ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी. आप सब अपने अपने तरह की धारणा, ध्यान, ये सब आप करते हो, राइट. And you, all of us are practicing this meditation. That is so familiar, that is so comfortable. But when the time comes, जब हमें शरीरतीत, मनातीत, मन्नातीत, राइट, बुद्धितीत, हमें जब ये सब छोड़ने का समय आता है, हाड़ के हम वापस से हमारे शरीर में आ जाते हैं. एकाग्र चित्त तक भी हम कंफर्टेबल है, लेकिन एकाग्र चित्त से निरुद्ध में जाना है तो डर जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं. एकाग्र चित्त की तो फिर भी जाना पहचाना है, अनजाने में हमारा क्या होगा हम नहीं जानते. सो वन गेट्स फ्राइटेंड, डर जाते हैं. Isn't that what happens to us, right? युद्ध तक का सब कुछ अर्जुन को पता है, लेकिन इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, आगे जाके क्या होगा, वो प्रेडिक्ट नहीं कर सक रहे, और इसलिए वो डर गए. वी आर फ्राइटेंड व्हेन वी आर इन साइलेंस एंड देयर इज नोवेयर टू गो एंड नथिंग टू डू. जब तक सांसों पे ध्यान रखकर आनापान सती हो रहा है, हम खुश है. सांसों को छोड़ने का समय आ जाए, श्वास शून्य, काल शून्य, स्थल शून्य. हाँ, जो लोग अभी कोर्स कर रहे हैं शायद ये शब्द आ गए होंगे ऑलरेडी आपको. हाँ, काल शून्य, स्थल शून्य, शरीर शून्य, मन शून्य, बुद्धि शून्य. श्वास शून्य का समय आ गया तो डर गए, क्योंकि वो शून्य में क्या होने वाला है, क्योंकि वो यहाँ पे कुछ तो है. क्या है? वाइब्रेशंस है. हाँ, मेडिटेशन में आप लाइट देखोगे, वाइब्रेशंस देखोगे, मजे में है, तब तक वी आर एंजॉइंग अवर मेडिटेशन. लेकिन यहाँ पे जहाँ वाइब्रेशन है वहां पे नाद है. हाँ, देयर इज साउंड, साउंड एनर्जी जो हमने केना में पढ़ी थी. तो देयर इज साउंड एनर्जी. इन द साउंड एनर्जी वी आर वेरी कंफर्टेबल. But when we have it to go into शून्य, there is silence. और हमें साइलेंस का कि बिल्कुल अनुभव नहीं है. हम साइलेंस क्या होता है ये जानते ही नहीं. पता है, जो मेडिटेटर्स अंदर से जिनका संवाद बंद हो जाता है, वो लोग शेयर करते हैं, you know, after meditation class when we discussed this, I could hear my heartbeat, I could hear my breath. जब वो सूक्ष्म सूक्ष्म में चले जाते हैं ना, अपने ही सांसों का साउंड उनको छोड़ेगा नहीं. साउंडलेसनेस, कंप्लीट साइलेंस में जाना है अगर, तो हम डर जाते हैं, क्योंकि अब आगे कहीं जाना नहीं है, अब छुपने की कोई जगह नहीं है, अब कोई आधार नहीं है. हाँ, सारे साधन छूट गए, सब कुछ छूट गया. सो देयर इज नोवेयर टू गो एंड नथिंग टू डू. वी बिकम फ्राइटेंड. नो इन्वेस्टमेंट इज पॉसिबल इन द अननोन. I will repeat this sentence. Such a beautiful sentence. Think about it, contemplate on it. No investment is possible in the unknown. जो नोन है ना, उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम लोग. हाँ,
लेकिन जो अननोन है उसको कैसे प्रेडिक्ट करें? तो जो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसमें इन्वेस्ट कैसे करें? So no investment is possible into the unknown. Investment into the known is possible, not into the unknown. You cannot anticipate the reaction of the unknown. You cannot anticipate and calculate the movement of the unknown and try to prepare yourself to meet that movement or face that movement. इस तरफ गति है, कौन सी स्पीड से जा रही है, ये गति का रिदम क्या है, चाहे वो हमारी सांसों की गति हो या हमारे विचारों की गति हो, कुछ तो अंदाज हमें होता है और उसका परिणाम का भी अंदाज हम अच्छी तरह लगा सकते हैं। इसलिए आनापानसति करते हैं, चलो इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्राणों के साथ हो लिए। लेकिन जब शून्य में जाने की बारी आती है तब वहां पे क्या होने वाला है, कुछ होने भी वाला है कि नहीं, उसका परिणाम क्या होगा, मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, क्या मैं फिर भी संसार कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? मेरा क्या होगा? इस बात से हम डर जाते हैं और हम उस साइलेंस में जाने को डरते हैं। दैट इज वाई द अननोन फ्राइटन्स अस, और इसलिए हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहां पे कोई रिएक्शन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्या प्रतिक्रिया होगी या क्रिया होगी, हमें कुछ अंदाज नहीं लगता। We inquire about the cosmic reality and get frightened. देखो हम लोग को कितने होशियारी से हम बैठे हैं उपनिषद पढ़ने। अमूर्त है तब तक सब ठीक है, लेकिन जब अपने ही आत्मा से आमना सामना होगा तब क्या होगा कालिया? लाइक दिस है ना, व्हाट विल हैपन देन? तो हम देखो हमारे मतलब कहते हैं ना, चिल्ड्रन आर सो इनोसेंट ना, दे विल आस्क बिग क्वेश्चंस। मम्मा, बच्चे कैसे पैदा होते हैं? एंड देन मम्मा एंड पापा डजंट नो व्हाट टू आंसर। उसी तरह हम लोग पूछते हैं ये ब्रह्मांड क्या है, ये परब्रह्म क्या है, ये परमात्मा क्या है, बड़े बड़े सवाल पूछते हैं और फिर डर जाते हैं, क्योंकि उसके जवाब फिर सुन भी लेंगे 1 मिनट को अगर हम थोड़े से बड़े हो गए हो तो। आई मीन टू से इफ वी हैव मैच्योर्ड, वी विल लिसन, वी विल अंडरस्टैंड, बट व्हेन वी कम फेस टू फेस विथ इट वी विल स्टिल गेट फ्राइटेंड। That is the fright of the unknown. Yeah. So we inquire about the cosmic reality and get frightened. What will the cosmic reality do to me? अगर मैं परब्रह्म परमात्मा को जान गई, अगर मैं अपनी ही आत्मा को जान गई, तो मेरा क्या होगा? आई एम शेपिंग माई लाइफ, आई एम कंट्रोलिंग, आई एम डायरेक्टिंग। देखो अभी तो मेरी जिंदगी मेरे हाथों में है, मेरी जिंदगी की लगाम मेरे हाथों में है, मेरे जिंदगी को आकार मैं दे रही हूँ, उसको दिशा मैं दे रही हूँ, उस पे पूरा कंट्रोल मेरा है। इफ द ईगो गेट्स कंप्लीटली लिक्विडेटेड, लेकिन ये जो मेरी पहचान है, ये जो मेरा ईगो आइडेंटिटी है, ये जो मेरा एक नाम रूप है, अगर ये ही नहीं रहा तो if the I consciousness gets completely into abeyance, what will happen? तो क्या होगा? अगर ये जो अस्तित्व है मेरा, ये जो मेरी पहचान है, यही नहीं रही तो फिर मेरा क्या होगा? नो कैलकुलेशंस, नो बार्गेनिंग, नो एंटिसिपेशन। अगर मेरी पहचान ही नहीं रही तो मैं क्या गिनती करूंगी, कौन सी गणना करूंगी, कौन सा बार्गेनिंग करूंगी, कौन सा थियोरी को समझूंगी, कौन सा किस चीज के लिए एंटिसिपेट, यानी आगे क्या होगा, इसको हम देखते रहते हैं। क्या देखूंगी मैं आगे? एंड द पर्सन हु हैज स्पेंट years and years in verbal inquiry, जन्म जन्म से बरसों तक हम आध्यात्म का सवाल पूछते आए, ये जीव क्या है, जगत क्या है, मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है।
ये प्रकृति क्या है, ये पुरुष क्या है, बड़े बड़े सवाल हमने पूछे, बड़ी बड़ी किताबें हमने पढ़ी, बड़ा बड़ा ज्ञान हमने लिया। ये सब लेने के बाद गेट्स डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड व्हेन देयर इज एन एनकाउंटर विद द एम्प्टीनेस ऑफ साइलेंस। सारे सवाल पूछे, ये ब्रह्मांड, ये परब्रह्म, ये परमात्मा कौन है, और उसी ब्रह्मांड की शक्ति, उसी परब्रह्म, उसी परमात्मा के साथ आमना सामना जब हो जाता है, जहां पे बिल्कुल मौन है, शून्य है, शून्य में मौन है, साइलेंस एंड एम्प्टीनेस, जब उसके साथ आमने सामने हो जाते हैं, with the emptiness of meditation, when there is a realization that one would get reduced to nothingness and nobodyness. यहाँ पे मैंने इस शून्य में, इस मौन में अगर मैंने कदम रख दिया, अगर मैंने पैर रख दिया, तो मैं कुछ नहीं रहूंगी, मैं कोई नहीं बन जाऊंगी, और मैं कुछ नहीं रहूंगी। तब हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम डिजेक्टेड हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। अपने ही ये इससे मुझे याद आया, अपने ही ग्रुप के एक बहुत आध्यात्मिक, मतलब बहुत स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े हुए व्यक्ति है, और कंप्लीटली इनटू साधना एंड कंप्लीटली इनटू शिव तत्व। उनका मुझे मैसेज आया कि मैम, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, कैन आई प्लीज कॉल यू। हाँ, तो वो बात करना चाहते थे। दैट इज द डिप्रेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर मेडिटेटर्स, ऑल ऑफ अस आर मेडिटेटर्स। एज द मेडिटेशन प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे हम वो शून्य की तरफ बढ़ते जाएंगे, अकेलापन महसूस होता है। आइसोलेशन इज गुड, लोनलीनेस इज नॉट गुड, and we begin to feel lonely, and that loneliness makes us depressed. जब तक टीचिंग है, जैसे अभी मैं पढ़ रही हूँ, रीडिंग है, आप सुन रहे हैं, लिसनिंग है, कोई ना कोई एक्टिविटी है, तब तक हम सब कंफर्टेबल है। लेकिन उस शून्य अवस्था में जब हम पहुंचेंगे, जहां पे कोई गति नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, शून्य है, शांत है बिल्कुल, तब जाके डिप्रेशन फील होता है। पतंजलि योग सूत्र में भी इसके बारे में मेंशनिंग किया है ना ममता? या यू रिमेम्बर द सूत्र वेयर ही सेज, तभी मतलब इट्स इन द फाइनल पाद दैट पतंजलि टॉक्स अबाउट दिस, यू नो, द स्पिरिचुअल लोनलीनेस, एंड देन ही सेज, नाउ इट इज टाइम टू इंक्रीज और डबल अप योर एफर्ट्स ऑफ अभ्यास एंड वैराग्य। क्योंकि ये उन्होंने दिया हुआ है कि अभ्यास करो, वैराग्य साथ में प्रैक्टिस करते जाओ। जितना अभ्यास बढ़ते जाएगा उसके साथ साथ वैराग्य रखो। हाँ, अभ्यास से वैराग्य और वैराग्य में अभ्यास, ये दोनों चीजें करते जाओ, ऐसा उन्होंने समझाया है। तो व्हेन वी रियलाइज that we will get reduced to nothingness and nobodyness, we become dejected. Something of that kind must have happened to Arjuna. सब मेरे अपने मर गए, कोई नहीं रहा, तो क्या होगा? इस विचार से अर्जुन यहाँ पे जो है बिल्कुल त्रस्त हो गए। इट वॉज अ डायरेक्ट एनकाउंटर विथ डेथ। हरेक के चेहरे पे उन्होंने उनको हरेक जगह उनको यमराज दिख रहे थे, मृत्यु के बिल्कुल मुख पर वो देख रहे थे। हाँ, he was looking at death. The battleground represents death, क्योंकि युद्ध भूमि तो मृत्यु की भूमि है। Until that moment, उस क्षण तक the idea of dying, मृत्यु की एक आइडिया है हमें। हम मृत्यु देखते हैं, जानते हैं लोगों को जो मृत्यु मुख गए हैं,
हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, अभ्यास भी करते हैं। द आर्ट एंड साइंस ऑफ डाइंग वी स्टडी इनटू इट, बट व्हेन डेथ कम्स टू अस, और जब मृत्यु के साथ आमना सामना हमारा होगा, हम नहीं जानते क्या होने वाला है। Most of us will get scared, most of us will be frightened. Yeah, so the battleground represents death. Until that moment, the idea of dying, the idea for fighting the injustice was a romantic one, है ना? अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे, है ना? कितना ऐसा छाती फुलाती है, and you feel like a hero. Oh, I'm going to fight against injustice and all of that. But when you come in direct encounter, we get scared. The Kauravas had done evil things. हाँ, कौरव ने बहुत बुरी कृत्य किए थे, so they must be killed. उनको तो मृत्यु ही उनकी सजा हो सकती है. An idea. कौरवों ने बहुत बुरे कृत्य किए हैं और मृत्यु ही इनकी सजा हो सकती है. जब तक ये दिमाग में एक आइडिया बनकर था, नो प्रॉब्लम. बट व्हेन इट केम टू एक्चुअल किलिंग, killing your uncle, killing your grandfather, killing your nephew, even the memory that they had done injustice goes into the background. जब उसी गुरु, उसी भाइयों पे, उसी अंकल्स पे जब तलवार उनको मृत्यु मुख, मतलब मृत्यु देने का वक्त आता है ना, तब अन्याय विन्याय सब भूल जाते हैं. वो अन्याय महत्व का नहीं रहता. Oh yes, they did it because they were foolish, they were stupid, but we understand the truth. Why should we kill them? अरे वो तो मूर्ख है, वो तो बुरे हैं, इसलिए उन्होंने किया. पर हम तो शयाने हैं, तो हमने उनको क्यों मारना? देखो कितनी फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट अर्जुन कृष्ण को देते जाते हैं, एक के पीछे एक. अर्जुन विषाद योग में कि भाई, so many philosophical reasons he is giving as to why he should not fight. They did it because they were foolish, they were stupid, but we understand the truth. Why should we kill them? Are we going to add another folly to their folly, or are we going to add stupidity to their stupidity? अरे उन्हें नहीं मूर्खता की, उनके साथ क्या हम भी मूर्खता करेंगे? उन्होंने बुरा किया, इसलिए क्या हमने भी उनके साथ बुरा किया? अचानक वो महात्मा गांधी बन गए कि कोई तुम्हें एक लगाए तो तुम दूसरा गाल देते हो. सडनली ही इज रीच्ड ओवर देयर. तब तक तो अन्याय के खिलाफ आवाज चल रही थी, जब तक आइडिया थी, जब तक सिर्फ बातें थी, जब तक प्लानिंग स्टेज में था. In the first chapter, Arjuna gives quite a sermon to Krishna. क्या क्या बोलते हैं अर्जुन? कृष्ण को प्रवचन देते हैं अर्जुन. He explains the disadvantages of war and what happens after a war, how society gets contaminated, how all culture disappears, the wailing of the widows, the screams of the orphans. It is quite a description he gives. तो कृष्ण को वो क्या क्या प्रवचन देते हैं. कहते हैं कि युद्ध में किसी का भला नहीं होता, और युद्ध के बाद क्या क्या हालत होती है, समाज कैसे बिखर जाता है, सारा व्यवस्थापन बिगड़ जाता है. और फिर वो जो विधवाएं हैं, इनकी आवाजें हम कैसे सुनेंगे, ये बिन बाप के बच्चों की चीखें हम कैसे सुनेंगे. बहुत कुछ वर्णन करते हैं अर्जुन यहाँ पे. It is the Arjuna Vishada Yoga. That is the name of the first chapter. Vishada is the culmination of dejection into a sense of frustration. तो विषाद है ना, जब पूरी तरह नकारात्मक हम हो जाते हैं, और वो पूरी तरह नकारात्मक होने के बाद हमें जो फ्रस्ट्रेशन फील होता है, वो है ये विषाद. So Arjuna turns to Krishna who says, तो जब ये सब बोलते हैं अर्जुन कृष्ण को, तो कृष्ण कहते हैं, Didn't you know all this before? क्या तुम्हें ये पहले से नहीं पता था? You have known all this before. तुम्हें सब पता था. ये अभी जो भी कुछ तुम मुझे बोल रहे हो, ये सब तुम्हें पता था.
यू आर अ वॉरियर, यू हैव फाइट मेनी वॉर्स। क्या ये तुम्हारा पहला युद्ध है? अरे तुम तो क्षत्रिय हो, तुमने हजारों युद्ध किए हैं, हजारों सैन्य का वध किया है, 1000 विजय करके आए हो तुम। क्या तुम्हें ये पहले से नहीं पता था? सपोजिंग यू डू नॉट फाइट अगेंस्ट दिस पीपल, व्हाट विल यू डू? आप एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। अगर ये युद्ध आपने नहीं किया तो आप क्या करोगे? विल यू गो टू सम फॉरेस्ट, लिव इन सम आइसोलेशन? क्या आप कोई वन में चले जाओगे, जंगल में चले जाओगे और अकेले रहोगे? You have been brought up and taught the science and art of fighting. You are a kshatriya. You have been trained for this. अरे तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है ये युद्ध करना या क्षत्रिय धर्म निभाना, ये तुम्हारा धर्म है। जिंदगी भर यही सीखते आए हो तुम। Wherever you go, all your conditionings of resisting the injustice and evil will be there. अगर आप अकेले वन में भी चले जाओ ना, वहां पे किसी न किसी कुछ अगर अन्याय हो रहा है तो वहां पे भी तुम अन्याय रोकने की कोशिश करोगे। आप जहां भी जाओगे आप अन्याय रोकने की कोशिश करोगे, आप युद्ध करोगे। Why are you trying to escape from your responsibility now? सोचो ना, क्या अन्याय कहीं भी जाए अर्जुन, क्या वो देख पाएगा? जो वीक है उसकी तो वो बाजू लेगा ही लेगा, बराबर है ना? तो अब क्यों तुम कहते हो कि अब क्यों जवाबदारी से भागना चाहते हो? नाउ यू आर गेटिंग टॉर्चर्ड बाय एन इनवर्ड कॉवर्डाइज। अब अंदर से तुम डर गए हो और एक डरपोक की तरह से तुम तड़पड़ा रहे हो। जिस तरह से एक डरपोक डरता है उस तरह से तुम डर रहे हो। डू यू वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो तुम्हारी जवाबदारी है, अपनी जवाबदारी से आप भागना चाहते हो। दैट इज द क्वेश्चन कृष्णा आस्क्स अर्जुन। अर्जुन को पूछते हैं और अर्जुन जवाब देता है, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, व्हाट इज माय धर्म हियर? आप मुझे बताओ मेरा धर्म क्या है? If not to fight is an escape, if turning away is an escape, what do I do now? आप कहते हो कि डरपोक की तरह भागो नहीं, भाग जाना सही नहीं है। अगर आप ये कहते हो तो मैं अब क्या करूं? The dejection and frustration has converted itself into an inquiry. See, so beautifully she is showing over here कि देखो रूपांतर हमारे अंदर कैसा होता है। जब वो बिल्कुल बॉटम, when we hit the bottom, you know, then we say, where do we go from here? We have hit a wall. Now we don't know what to do. Where do I go from here? And then you start asking, please गुरु मुझे बताइए मैं क्या करूं? हाँ, तो सवाल में जो वो बिल्कुल त्रस्त हो गए थे, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, कृष्ण के सवाल से ये अर्जुन ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। The dejection and frustration has converted itself into an inquiry. When we get dejected and depressed, we also try to find a network of escapes. जब हम भी इस तरह त्रस्त हो जाते हैं ना जिंदगी में, तो हम भी कोई ना कोई मार्ग ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हेल्थ साथ नहीं देती, जब संबंध बिगड़े हुए हैं, हाँ, जब जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा, तब योगा क्लास ज्वाइन करते हैं। To give a very simple example, you know, when we are like at our worst, that is when we will start looking for, how do I escape this troubled life? How do I escape all the difficulties that I'm facing? How do I escape this suffering? घुटने दर्द हो रहे, पीठ दर्द हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई ना कोई मार्ग हमें तब ढूंढते हैं। So we want to do something and we fail. कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। That failure creates dejection.
कुछ करना चाहते हैं और जब कर नहीं पाते तब हम पूरी तरह से नकारात्मक हो जाते हैं. We love someone and that someone turns away from us and we get depressed. हाँ, हमारा किसी पे दिल आ जाता है, हम उनसे प्यार करने लगते हैं और वो कहते हैं कि नहीं भैया सॉरी मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता. और हम क्या हो जाते हैं, नैराश्य में चले जाते हैं. वी सी कैलसेस अराउंड अस एंड वी बिकम सिनिकल. और हम देखते हैं यार ये दुनिया कितनी बुरी है, जहां देखो वहां पे कोई चीटर्स है, कोई झूठ बोल रहे हैं, बस ये. और फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं जिंदगी अच्छी नहीं है, दुनिया अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं है. You see, that dejection, that depression, that frustration, if it leads to escape and cynicism and isolation, it removes us from the field of action. एक दो बुरा अनुभव हो गया, किसी ने तुम्हें फाइनेंशियली फंसा दिया या किसी ने तुम्हें, तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें दगा दे दिया, हम क्या कैसे हो जाते हैं, हम कहते हैं ये दुनिया बुरी है, किसी पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, जिंदगी अच्छी नहीं है, ये मनुष्य जन्म हमने क्यों लिया, ये मनुष्य जन्म यानी एक पाप है, ये तो एक सजा है. लाइफ इज बैड, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, दिस इज सो हॉरिबल, nobody is good over here, nothing is working out for me. या सो ऐसा जब हमें महसूस होता है तब क्या होता है, इट रिमूव्स अस फ्रॉम द फील्ड ऑफ एक्शन. हम कर्म करना छोड़ देते हैं, करने से क्या फायदा, बुरा ही होने वाला है, नहीं करते हैं. सो वी स्टॉप टेकिंग एक्शंस. इट रिमूव्स अस फ्रॉम द फील्ड ऑफ एक्शन. इज इट नॉट अवर एक्सपीरियंस इन डेली लाइफ? Somebody hurts us and we get dejected and living gets suspended completely for hours together. आप याद करो, हाँ, हमें सबको वी एक्सपीरियंस ब्लैक एंड व्हाइट एवरीथिंग, हम सबके पास सारे अनुभव होते हैं. अगर हमको किसी ने जिस दिन दुख दिया था उस दिन को याद करो, कोई बुरे शब्द, बुरे वेण आपको बोले थे, बुरे शब्द बोले थे आपको, उसके बाद वो तुम्हें जब मुंह पे तुम्हें कुछ तो भी बुरा बोला गया था, उसके बाद कई घंटों तक तुमने जीना छोड़ दिया था, तुम दुख में रहे थे. दुख में रहना यानी जीना छोड़ना. या whenever you are in suffering you are not living. Yeah, so this is what we had given up. Life was suspended completely for hours together. We sit down in an easy chair or lie down on some bed and play with the memory of how we were hurt. क्या किया था हमने, जब कोई हमें बुरा बोलकर चला गया था, दुख दे के गया था, या तो हम कुर्सी पे बैठे रहे थे या लेटे रहे थे और हमारी दिमाग में वो सारा खेल फिर से रिपीट रिपीट रिपीट. उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला, वही स्मृति का खेल चलता रहा. वी सस्पेंड द मूवमेंट ऑफ लिविंग. जीना हमने कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया था. हम कहाँ थे, स्मृति में थे, मेमोरी में थे. We suspend the movement of living. We may suspend it for hours, for days, for weeks. यहाँ पे उन्होंने full stop दिया है, लेकिन I will go on and say for years and even for lifetime. Right? So the Vedas, the Upanishads, the Indian philosophy says, और इसलिए वेद उपनिषद, हमारे जो भारतीय तत्व ज्ञान है, ये हमें कहता है that which turns you away from life and living is a sin. जिंदगी और जिंदगी से जीना छोड़ना और जिंदगी से मुख मोड़ना, ये सबसे बड़ा पाप है. रोज पाप करते हैं हम लोग, रोज. हाँ, there is no other sin in life but to turn away from life.
जिंदगी को पीठ दिखाने से बड़ा पाप कोई नहीं है। When you try to escape from the responsibility of living, of facing challenges, of meeting them, then you are committing a crime against life. You are committing a sin against life. जितना टाइम हम हमारे स्मृतियों में बिताते हैं वो हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि जब हम स्मृति में है तब हम जिंदगी के साथ नहीं हो सकते। अब भी when we are in our past, what are memories? Memories are past. When we are in the past, how can we be in the present? So when we are in our memories, we are not living. Yeah. So we are committing a crime against life. We are committing a sin against life. So Krishna says, तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, we are not going to turn away. तुम्हारे सामने जिंदगी है, अब भी जिंदगी यहाँ पे है और जिंदगी से हम भागेंगे नहीं। We will question what is death. हम सवाल पूछेंगे, हम पूछेंगे ये मृत्यु क्या है, व्हाट इज लाइफ, ये जीवन क्या है, व्हाट इज किलिंग, ये किसी को मारना यानी क्या है, व्हाट इज रिलीजन, धर्म क्या है। वी विल क्वेश्चन, हम इंक्वायरी करेंगे, हम सवाल पूछेंगे। टर्निंग अवे इज नो सोल्यूशन। पीठ दिखा के भाग जाना ये कोई उपाय नहीं। एस्केप इज नो सोल्यूशन। In the general introduction to the Gita, we looked into the characteristics of the ancient Oriental people, for whom religiosity was love of life, for whom spirituality was an act of living. Nothing could divert the attention of the sages and seers from life and living. We started from there, and the poetic exclamations of perceptions in the form of the Vedas, and then the dialogues of the Upanishad, and then the systemized knowledge about reality in 6 systems of philosophy यानी षड दर्शन। यहाँ पे विमला जी कह रही है कि जब हम रिलीजन कहते हैं ना, धर्म कहते हैं ना, हम ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है ना, ये धर्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म भी कहते हैं, और ये जो ऑर्गेनाइज्ड जो भी है ये तो बहुत नया नया है ज्यादा। लेकिन वेद उपनिषद के टाइम वो जो हमारे ऋषि थे, वो मुनि थे, उनका तो अभ्यास, उनका तो तत्वज्ञान जिंदगी था। उनका अभ्यास जिंदगी और जिंदगी के पहलुओं का था। उनका अभ्यास लिटरली जिया कैसे जाए, द आर्ट ऑफ लिविंग, इस पे था। तो उसमें से जब उनके जिंदगी से उनका डायरेक्ट एनकाउंटर हुआ, जब जिंदगी को उन्होंने बिना किसी चश्मे के उन्होंने क्लियरली देखा, तब उसकी जो जिंदगी की जो भव्यता है, जो सुंदरता है, इसके तारीफ में उन्होंने वेद गाए, उपनिषद लिखे। हाँ, और फिर उसके बाद में षड दर्शन लिखे गए। द वेद एंड द उपनिषद डू नॉट गिव यू नॉलेज। वेद और उपनिषद कोई ज्ञान की किताबें नहीं है, वो हमें नॉलेज नहीं देते। इट इज नॉट सिस्टमाइज्ड थॉट। देखो 2+2 करोगे ना तो 4 बनेगा, और 4 into 4 करोगे ना तो इतना बनेगा। ये सिस्टमैटिक नॉलेज नहीं है। वेद उपनिषद कोई ज्ञानों की किताबें नहीं है। इट इज जस्ट अ वर्बल ट्रांसमिशन। जो भव्यता, जो सुंदरता जिंदगी की मैंने देखी, उसका गीत है, उसको वो गाकर सुना रहे हैं। वर्बल ट्रांसमिशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम गिविंग इंफॉर्मेशन। अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको बता दूं, या मैं कोई भी यूनिवर्सल लॉ के बारे में आपको बता दूं, और आप पढ़ोगे और आप बोलोगे अरे वाह वाह कितना अच्छा है, लेकिन जब उसे महसूस करोगे तब वो ज्ञान नहीं रहेगा, वो अनुभव बन जाएगा। तो वेद उपनिषद कोई इंफॉर्मेशन पैम्फलेट या इंफॉर्मेशन बुकलेट नहीं है। हाँ, ये तो गुरु ने शिष्य को दिया हुआ ज्ञान है।
you know, verbal transmission is quite different from giving information. The six systems of philosophy are systemized knowledge about reality. हाँ, षट दर्शन जो है, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, ये जो है ना, ये टेक्स्ट बुक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे ये पुस्तकी ज्ञान है, जहाँ पे सत्य के बारे में ज्ञान दिया गया है, इंफॉर्मेशन दिया गया है, कहा गया है कि देखो ये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हैं। सांख्य हमें कहेगा, सांख्य और योग, अगर ये जोड़ दर्शन हम ले लेते हैं, तो सांख्य कहेगा देखो तुम्हारे कितने पार्ट्स हैं, तुम्हारा मन है, तुम्हारा चित्त है, तुम्हारे इंद्रिय है, तुम्हारे कर्म इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, बुद्धि है, अहंकार है, ये है, वो है, ये सारे टुकड़े तुम्हारे, यू आर द पार्ट्स, you know, they will show you all the parts of who we are. And then योग will say, इसलिए इनको योग जोड़ दर्शन कहा जाता है, क्योंकि सांख्य जो है ये टुकड़े दिखाता है. Yes. And yog, so totally they give us they give us about 25 parts of us, सांख्य describes. And योग हमें ये सिखाता है कि इनको कैसा जोड़ा जाए, और इसलिए इसे they complement each other, and that is why it is called as Jod Darshan. So it is systematized knowledge about reality. They do not deal with the perception of reality. सत्य को देखो, ये देखो ये बीज है, जाओ एक वड के झाड़ का बीज लेके आओ, गुरु कहता है, शिष्य जाके ले आता है और बोलता है क्या ये बीज वड का झाड़ बन सकता है? बोलता है हाँ गुरु जी बिल्कुल बन सकता है. अच्छा तो दिखाओ कहाँ पे है वो झाड़. अगर ये झाड़ इस बीज के अंदर है, एक पूरा झाड़ इस बीज के अंदर है, तो वो वृक्ष हमें दिखना चाहिए, दिखाओ हमें वो वृक्ष. शिष्य कहता है नहीं यार वो तो मैं नहीं दिखा सकता. यू नो, दिस इज हाउ उपनिषद टीचेस परसेप्शन, दृष्टिकोण देता है. देखो इस तरह से देखो, अब देखो क्या दिखता है. सो उपनिषद गुड दैट, बट द षट दर्शन दे विल गिव अस नॉलेज. ये फर्क है उसमें. They do not deal with the perception of reality. They do not have that ecstatic characteristic or directness, the beauty of the poetry of Chandogya Upanishad or the Isha Upanishad or the Mandukya Upanishad. And after the six systems, you come to the essence of all that. वेद हो गए, उपनिषद हो गए, षट दर्शन हो गए, और ये सारी चीजों का जो सार है ये हमें गीता में मिलेगा, ये हमें इस भगवत गीता में मिलेगा. So the 18 chapters of Gita are the essence of all the Upanishads and the Vedas. चारों वेद, सारे उपनिषद, इन सब का सार जो है ये भगवत गीता में समाया हुआ है. 18 अध्याय में ये सारा सार का समावेश है. The Gita is a revelation of ब्रह्म विद्या. एक्चुअली भगवत गीता हमें ब्रह्म विद्या सिखाती है, ऑफ द हाईएस्ट रियलिटी. ब्रह्म से बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है, या तो ब्रह्म उसका ज्ञान हमें देती है. एंड इट इज ऑल्सो एन एल्यूसिडेशन ऑफ द साइंस ऑफ योग. और ये जो योग विज्ञान जो है इसके बारे में भी बहुत डिटेल में गीता हमें समझाती है. इट विल टेल यू अबाउट द एब्सोल्यूट रियलिटी. वो परम सत्य के बारे में बात करेगी, बट नॉट इन एब्स्ट्रैक्शन, अमूर्त नहीं. हाँ, रियलिटी को रियलिस्टिकली दिखाएगी, नॉट एज एन एब्स्ट्रैक्शन, ऑलवेज इन रिलेशन टू डेली लाइफ. रोज की जो हमारी जिंदगी है, इस जिंदगी में ही हमें परम सत्य देखना है, नॉट आउटसाइड लाइफ, इन एवरीडे डेली लाइफ, इन द मूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप. सारे संबंध जो हम जोड़ते हैं ना वस्तु व्यक्ति विषयों के साथ, उस जोड़ते हैं वो संबंध में हमें ये देखना है, ये ब्रह्म विद्या हमें, ये हाईएस्ट रियलिटी हमें देखना है. द भगवत गीता इज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग दैट वी विल बी स्टडिंग टुगेदर. तो ऐसी गीता का अभ्यास हम करने जा रहे हैं. इट इज द रिविलेशन ऑफ योग. योग सीखने जा रहे हैं. इट टेल्स यू दैट रियलिटी
It tells you about reality and it indicates the path of to get reunited with the reality. हम सत्य के मार्ग से भटक गए हैं, हम सत्य से दूर हो गए हैं। ये जो सत्य है, ये जो परम सत्य है, उससे कैसे हम जुड़ सकते हैं, ये हमें गीता सिखाएगी। एंड द पाथ इज योगा, और वो मार्ग का नाम है योग। Not the exclusive partial compartmental path of karma योग, भक्ति योग, etc. हाँ, ये जो योग है ना, इसमें सारे योग समाये हुए हैं। These outer paths और सिस्टम, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये जो बाहर के जो मार्ग है, दो नेसेसरी, जरूरी है लेकिन सीमित है। दो नेसेसरी, दे आर limited, and the sum of them all also will be limited. Are you with me, guys? Did you just get what I read the last line? अगर ये सारे मार्ग सीमित है, तो ये सारे मार्ग को इकट्ठा कर दे तो भी वो सीमित ही रहेंगे। They will remain limited, all of them, right? Even when put together, the essence is अनडिवाइडेड होलनेस। लेकिन हम कौन है? हम असीमित है, हम पूर्ण है। द एसेंस इज अनडिवाइडेड होलनेस, एंड unless there is an awareness of that undivided wholeness, what you do with the outer systems and the excellences that you cultivate in practicing them will still leave something missing. कोई भी मार्ग पे चलते जाओ आप, लेकिन मैं पूर्ण हूं, मैं अविभाजनीय हूं, अनडिवाइडेड हूं, कंप्लीट हूं, होल हूं, इसकी सजगता अगर मैंने नहीं रखी ना, तो मैं कोई भी मार्ग पर चलूं, कुछ ना कुछ कम रहेगा मेरी जिंदगी में। जैसे हम कहते हैं ना, दुनिया का राजा बन जाओ, सारी धन दौलत कमा लो, सारे सुंदर रिश्ते बना लो, सारे सुख ले लो, फिर भी कुछ तो मिसिंग है। हाँ, वरना जनक राजा जैसा राजा नहीं बनता। वो कुछ तो मिसिंग है कि, या भर्तृहरि फॉर दैट मैटर, ये राजा नहीं बनता। ये राजा थे जो वो कुछ तो मिसिंग है उसकी खोज में निकले। हाँ, और जैसे जनक राजा को अष्टवक्र मिल गए गुरु के रूप में, या भर्तृहरि को भी जो भी गुरु मिल गए, और फिर वहां से उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। तो वो कुछ तो मिसिंग हमेशा रहेगा। अगर, are you getting what I'm saying? If whatever study that we are doing, if whatever sadhana that we are doing, whatever meditations or paths that we are following, if we become unaware that I am complete, I am Brahma, aham brahmasmi, ये अगर भूल गई मैं, फिर मैं कितना भी मेडिटेट कर लूं, वो पूर्णत्व को नहीं जाएगा। The approach has to come from wholeness. The approach to anything has to come from wholeness. जिंदगी में कितने भी प्रॉब्लम्स आने दो, कुछ भी होने दो, मैं तो पूर्ण हूं। If I am complete, I am whole, if I am Brahma, if I am Atma, the challenges are all there, let them be. क्या फर्क पड़ता है? You will always be in bliss. सच्चिदानंद की स्थिति में रहेंगे हम, अगर हम ये अंदर के ब्रह्म को भूल नहीं गए। और अगर भूल गए, फिर कितने भी साल आप कितनी भी साधना कर लो, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो कम है। Still, life is not what it is. हमको लाइफ के अगेंस्ट कंप्लेन रहेगी, हम चैलेंजेस के अगेंस्ट कंप्लेन करते रहेंगे, क्योंकि भूल गए हैं। वी आर नॉट इन अवेयरनेस ऑफ अवर, आई एम इंसिस्टिंग ऑन दिस, आई एम रिपीटिंग दिस, आई अंडरस्टैंड। मैं ये कहना चाहती हूँ, आप जो भी मार्ग फॉलो करते हो, जो भी साधना करते हो,
अहम ब्रह्मास्मि बोल के शुरुआत करो। अहम ब्रह्मास्मि बोलते हुए चलते रहो मार्ग पर, तो पूर्णत्व को पहुंचेगा। नजर हटी दुर्घटना घटी, भूल गए कि अहम ब्रह्मास्मि है, तो फिर वो कुछ नहीं होने वाला वहां पे। या so the essence is undivided wholeness, and unless there is an awareness of that undivided wholeness, what you do with the outer system and the excellences that you cultivate in practicing them will still leave something missing. अरे मेरा लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 8 हो गया, मैं तो अब टीचर बन गई, विपश्यना के टीचर बन गए। अब तो मेरे लिए मेडिटेशन बाएं हाथ का खेल है। और मैं, बट अगर तुम भूल गए कि तुम ब्रह्म हो, तो कितना भी आप वो सिस्टम में कितना भी आप आगे निकल जाओ, कुछ तो कम रहेगा। द गीता हेल्प्स अस टू प्रोवाइड दैट मिसिंग क्लू। तो वो जो कुछ तो कम है ना, कुछ तो रह गया है ना, वो हमें गीता देगी। Yeah, Anju, you want to say something? Okay, I can see your hand up. All right. So the first chapter gives us the background of, yes, sir. You are muted. You are muted. Yeah, I had kept it on and I had unmuted myself unknowingly. Oh, Nothing, you continue. Sorry. No problem, no problem. The first chapter gives us the background of dejection and frustration of Arjuna, which will get converted into a positive, constructive inquiry. तो अर्जुन विषाद योग में अर्जुन जो डिप्रेस हो गए हैं, डिजेक्टेड हो गए हैं, ये उनकी अवस्था देखते हैं या अवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं, और उसके बाद में जैसे कृष्ण उनको जवाब देने लगते हैं, वैसे वो सवाल पूछने लगते हैं कि आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। कृष्णा यूजेस द डिजेक्शन एज अ मोटिवेशन फॉर द स्टडी ऑफ योगा। बस कृष्णा को तो इतना ही चाहिए था। कोई भी अच्छा गुरु, हम जैसे जैसे मैं उपनिषद, हम सब जो उपनिषद पढ़ते गए ना, ये ध्यान में आया कि अगर सही सवाल पूछा जाए तो गुरु बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि अब जवाब देने का मौका मिला है। लेकिन सही गुरु वो है जो जब तक सवाल नहीं पूछेगा तब तक कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। राइट? तो यहाँ पे कृष्ण बस चांस ही देख रहे थे कि कब ये मुझे सवाल पूछे। अगर अर्जुन ने कह दिया होता ना कि नहीं भैया ये मेरे से नहीं होने वाला, मैं तो चला और गया होता निकल के, तो भगवत गीता गाई ही नहीं जाती। लेकिन भागने से पहले उन्होंने पूछा, आप कह रहे हो मैं नहीं भागू, तो मैं क्या करूं आप बताओ। तो वो जो रूपांतर है, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डिजेक्शन इनटू इंक्वायरी, एक्चुअली देखा जाए ना तो गौतम बुद्धा का भी यही हुआ। राइट? राजपुत्र थे, लेकिन जब बीमार आदमी देखा, ओल्ड बुढ़ा आदमी देखा, शव देखा उन्होंने, और मन में सवाल आया कि ये क्यों है जिंदगी का भाग। और वहां से उन्होंने सवाल पूछना जहां से शुरू किया, वहां से आध्यात्मिक मार्ग उनका खुल गया। सो दिस इज व्हाट कृष्णा यूजेस द डिजेक्शन एज अ मोटिवेशन for the study of yoga, not allowing the dejection and frustration to lead to an escape, to lead to isolation, but using all that agony and pain, वो सारा दुख दर्द। आप जानते हो ना, बहुत बड़े बड़े जो कवि है, ग्रेट पोएट्स और शायर, इनकी शायरी बड़े दुख में से निकलती है। when they have faced so much of rejection in life, and when they have faced so much of dejection in life, they have started writing. Masterpieces have come out of complete dejection. देखो, जब हम पूरी तरह नकारात्मक हो जाते हैं, जब ये दुनिया से हमें लगता है कि ये सारी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं, मेरा कोई नहीं है, जब ये हमें महसूस होता है, हमारे पास दो मार्ग है। एक मार्ग यहाँ पे जो कृष्ण दिखाने जा रहे हैं, दूसरा है जीवन का अंत करना। जीवन को अगर अंत कर दिया आपने कि नहीं अब ये मुझसे जीना सहन नहीं होता, बस मैं अपनी जान ले लूं,
जीवन का अंत कर दिया, खेल खत्म है, वहां पे नई शुरुआत, नया डाव फिर से होगा चालू। हाँ, बट छोड़ो। लेकिन दूसरा ये है कि सवाल पूछो, जिंदगी ऐसी क्यों है, ये तकलीफें क्यों हैं? जब सवाल पूछने लगेंगे तब हमारा प्रवास शुरू हो जाएगा, हम योग की तरफ निकल पड़ेंगे। ऑलराइट, तो वो जो नैराश्य है, ये नैराश्य का यूज किया कृष्ण ने। अर्जुन के नैराश्य को लेकर उन्होंने योग का मार्ग दिखाया। You know, there is tremendous dynamic potential in sorrow, in pain, in agony, if one does not allow the ego to use the pain and agony for gratifying itself. अगर हमने अपनी जान नहीं ली, दुख दर्द में इतनी शक्ति है कि हम हमारी जान भी ले सकते हैं, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था कि अरे मैं कभी अपनी जान लेने की सोचूंगी, ये जीवन का अंत करने की सोचूंगी। वो अंत करने पे को तैयार हो जाता है या हो जाती है। या इतनी शक्ति है दुख दर्द में, जानलेवा शक्ति है। राइट, सो ट्रेमेंडस डायनामिक पोटेंशियल। वी विल सी दैट व्हाट कृष्णा डज विद दिस पेन। ये शक्ति को लेकर कृष्णा क्या करते हैं हम आगे देखेंगे। वी विल सी दैट व्हाट कृष्णा डज विद द पेन and agony of dejection, how he tackles the potential energy in the sorrow for a creative inquiry. हम आगे ये देखेंगे कि कैसे कृष्ण ये शक्ति को लेकर उसमें से नव निर्माण कैसे करते हैं, उसमें से how he uses that। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, बड़े बड़े पेंटिंग्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े आर्ट, म्यूजिक, बड़े बड़े पोयम्स, राइटिंग्स, बुक्स, ये दुख दर्द में से उभरती है। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी शक्ति है। Vedic literature is an ocean, a verbalized ocean of perceptions of truth. May I say perceptions of reality. On the one hand, the Vedas would tell you what existed before creation. They do not talk only about the Genesis. They talk about that which existed before creation. देखो, वेद में सारा ज्ञान हमें मिलता है, सिर्फ अस्तित्व का ज्ञान नहीं। हाँ, सिर्फ ये ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं, बट ब्रह्मांड से पहले क्या था, जब कुछ भी नहीं था तब क्या था, ये ज्ञान हमें वेद देता है। देयर इज नाइदर द रियल नॉर द अनरियल देन, देयर वाज नाइदर डेथ और डाइंग, लाइफ और लिविंग, देयर वाज नाइदर द लाइट ऑफ द डे नॉर द डार्कनेस ऑफ द नाइट, ओनली दैट एग्जिस्टेड। दैट in its undivided wholeness, in its absoluteness existed. तो वेद हमें ये कहते हैं कि था भी नहीं और नहीं भी नहीं था। ओके, देयर वाज नाइदर द रियल नॉर द अनरियल देन। हाँ, तो न माया थी और न सत था। हाँ, कुछ भी नहीं था, मृत्यु भी नहीं था, जीवन भी नहीं था, दिन भी नहीं था, रात भी नहीं था, सिर्फ वो था, वो जो पूर्ण है, वो जो एब्सोल्यूट है, वो जो बस है। या so what was there before everything came into existence, that was there. यहाँ ये हमें वेद सिखाता है। ओ, इट्स टाइम अप ऑलरेडी। कहाँ समय चला जाता है पता नहीं चलता। आई थिंक वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। तो वो था, हाँ, जब कहीं भी कुछ नहीं था, वही था, वही था। यू नो दैट सॉन्ग? या, such a beautiful song written. It's a very beautiful song. Very beautiful song. I just love that song. And तो वही था, वही था। ये वही कौन है, कल पढ़ेंगे। All right, what is that? We will read tomorrow. Yeah, we will continue from this point tomorrow. Thank you, everybody. Thank you very much. Thank you.